Okay, children, will continue with the chapter 34, short answer question, then objective 1, then objective 2. Okay, suppose charge particle moves with the velocity v near a wire carrying electric current. Magnetic force therefore acts on it. If the same particle is seen from the frame moving with the velocity v in the same direction, the charge will be found at rest. Will the magnetic force become zero in this frame? Answer is yes, because force depends upon the frame of reference, and in second frame of reference velocity is 0, f is equal to qvv sin theta. Therefore force will be 0 as observed in the second frame. Will the magnetic field become 0 in that frame? No, it doesn't depend upon the frame of reference. चलो तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. कैन द चार्ज पार्टिकल बी एक्सीलेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड? Yes, because force is there acting on this, f is equal to bqv sin theta if theta is not 0. So yes, it can be accelerated. Can its speed be increased? Answer is no, because force is always at right angle to the velocity. Only direction of particle will change, its speed will not change. No component of force is along the direction of velocity or opposite, so therefore speed is not going to change. Will the current loop placed in magnetic field always experiences zero force? Answer is yes, zero net force. Net force is 0, but part of this will be experiencing the force. Part of loop will experience the force. Alright, question number 4 देखेंगे. Net free electrons in the conducting wire are in constant thermal motion. If such wire carries a no current is placed in the magnetic field, is there the magnetic force on the each free electrons? Answer is yes, f is equal to qvb sin theta. On the wire, no, because net force will be 0. Random motion of free electrons. Assume that magnetic field in the uniform in a cubical region and is 0 outside. Can you project a charged particle from outside into the field so that particle describes a complete circle? No, when we project it from outside, force is this side, center will be somewhere here, it will turn about this and come out of the field. The answer is no, it cannot perform the full circle. 6 पे आते हैं. An electron beam projected along the positive x-axis deflects along the y-axis, positive y-axis. If this deflection is caused by the magnetic field, and what is the direction of field? तो राइट हैंड रूल से हम देखेंगे. Magnetic field comes along the negative z-axis. You can just have the index finger along the particle, and then thumb will indicate the force in case of electron, and then turning of the finger will indicate the field. In case of electron, you turn the direction of thumb in opposite direction, है ना. तो राइट हैंड रूल से नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है. कैन वी कंक्लूड द फील्ड इज पैरेलल टू जेड एक्सिस? यस, along the z axis. It is possible for the current loop to stay without rotating in the uniform magnetic field. If yes, what would be the orientation? Yes, that the loop should be perpendicular to the field. ऐसे लूप है तो फील्ड इधर होनी चाहिए. तो perpendicular to field, and that's called stable equilibrium. नहीं, if yes, what should be the orientation? Perpendicular to the field, and equilibrium can be stable and stable. दोनों केसेस में रोक सकता है. ठीक है. स्टेबल एंड स्टेबल कैसे होगी? करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी. अगर डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायपोल मोमेंट एंड फील्ड सेम डायरेक्शन में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम. करंट रिवर्स कर दो तो डायपोल मोमेंट अपोजिट हो जाएगा, थीटा 180 हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, बट फिर भी ये टॉर्क विल बी 0, थीटा 0 पर 180 पर.
Next one is 8th question. The net charge in the current carrying wire is 0. Then why does the magnetic field exert the force on it? So it is due to the force on the electron due to the drifting in the particular direction. एक particular direction में electron drift होते हैं, है ना? तब net charge 0 है, but they are drifting in, free electrons are drifting. Force on free electrons. Alright, चलो 9th क्वेश्चन देखेंगे. टॉर्क ऑन द करंट लूप इज 0 if angle between the positive normal and magnetic field is either 0 or 180 degree. In which of the two orientation the equilibrium is stable? थीटा इज इक्वल टू 0 पर होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है इस पर. 10th, वेरीफाई द यूनिट वेबर एंड वोल्ट सेकेंड आर सेम. तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, इसकी यूनिट वेबर होती है. एंड फैराडे सेकंड लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, देयरफॉर डी फाई इज ई डी टी. ई का क्या होगा, ईएमएफ है, ये वोल्टेज होगा, करंट का सेकंड होगा, टाइम का सेकंड होगा, सॉरी वोल्टेज सेकंड. दिस इज ईएमएफ. चलो ऑब्जेक्टिव 1 पे आएंगे. Positively charged particle projected towards east is deflected towards north by the magnetic field. The field may be in the downward direction. Positively charged projected towards east is deflected. ठीक है, तो थंब नॉर्थ में जाएगा, इंडेक्स फिंगर एक्स ईस्ट की तरफ जाएगी, फिर उसको हम जब टर्न करेंगे तो डाउनवर्ड जाएगी इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड रूल से डाउनवर्ड. चार्ज पार्टिकल इज whirled in the horizontal circle on the frictionless table by attaching to the string at one end. If the magnetic field is switched on in the vertical direction, the tension in the string will be outward or inward. Because चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया है. डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इनवर्ड और आउटवर्ड. तो टेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज. ठीक है, तो फोर्स आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन ऑफ द टेंशन विल चेंज. Which of the following particle will experience the maximum magnetic force when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? तो आंसर है डी. फोर्स क्या होता है, फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो ये सेम, ये सेम, ये सेम. चार्ज जो है डबली चार्ज लिथियम पर 2 चार्ज होंगे प्रोटॉन के बराबर. इस पे एक, इस पे एक, इस पे भी मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो ये दिस इज द क्राइटेरिया. मोर चार्ज ऑन द लिथियम, है ना, लिथियम प्लस प्लस पर 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा, मोर फोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सर्कल का रेडियस का ये फार्मूला होता है. फिर से अभी सिंगलली चार्ज है, सब पे चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में. तो अभी कौन डिसाइड करेगा, मास, है ना. मास इज द डिसाइडिंग फैक्टर. स्मॉलेस्ट सर्कल, तो एम लीस्ट, इलेक्ट्रॉन का लीस्ट है, तो इट इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ऑफ कोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी अपन 2 पाई एम, है ना. तो क्यू सेम है सबका, सिंगल आयोनाइड है, तो क्यू सेम, बी सेम, 2 पाई सेम, एम. जिसका मास मोर है दैट विल बी ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लिथियम. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फ्रीक्वेंसी. ज़्यादा मास होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, धीरे धीरे घूमेगा, इनर्शिया मोर होगा. Formula also says so. Circle loop of this much area carrying current this much in the magnetic field this much
टॉर्क ऑन द लूप, तो टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, बट जो है डायपोल मोमेंट भी ऊपर, फील्ड भी ऊपर है ना, परपेंडिकुलर है, तो डायपोल मोमेंट नीचे भी हो सकता है, पर थीटा 0 एंड 180 के लिए सेम, टॉर्क 0 हो जाएगा। 7 beam consisting of proton and electron moving with the same speed goes through the thin region in which there is a magnetic field perpendicular to the beam. The proton and electrons will go undeviated, no, 90 डिग्री पर डिवीजन होगा, will deviate by the same angle, no, because उनका मास डिफरेंट है, will deviate by different angles, hence separate, है ना, डिफरेंट एंगल पे सेपरेट होंगे मास डिफरेंट होने की वजह से। v सेम दिया है, सेम स्पीड, और b सेम है, q सेम भी होता है मैग्नीट्यूड का। सी द राइट आंसर। विल डिवाइडेड बाय द सेम एंगल, नो, मास डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट एंगल पे सेपरेट भी हो जाएंगे। चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सपोज b इधर है तो एक्यूट एंगल है, तो ऐसे ऐसे दो कंपोनेंट वेलोसिटी के होते हैं, ये कंपोनेंट आगे लेके जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन देता है। तो हेलिकल पाथ विद यूनिफॉर्म पिच यूनिफॉर्म होती है, बिकॉज ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। पार्टिकल मूव्स इन द रीजन हैविंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड द पाथ। तो बी इधर है और ई भी इधर है, तो परपेंडिकुलर दिया तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर मोशन कराएगा, बट फील्ड आगे फोर्स लगाएगी तो ऐसे गैप बढ़ता जाएगा, एक्सीलरेट होता जाएगा, इट विल कम लाइक दिस, गैप विल इंक्रीज। तो डी होगा नॉन यूनिफॉर्म पिच बढ़ती चली जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड। ठीक है, ऑलराइट। 10th, electric current I enters and leaves the uniform circular loop of radius A through the diametrically opposite points. ये अपोजिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर, यहाँ से passes through the center at speed v, the magnetic force acting on the particle when it passes through the सेंटर, तो एंगल 0 होगा, फील्ड वैसे भी 0 होगी इसकी वजह से, है ना, तो फोर्स विल बी 0 चार्ज पार्टिकल की, इवन इफ फील्ड 0 नहीं है तभी भी एंगल 0 होने की वजह से फोर्स 0 हो जाएगा सेंटर पे। ऑब्जेक्टिव 2 देखेंगे, इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, यस, एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0, नो, एंगल 0 होने से भी फोर्स, एंगल 0 और 180 होने से भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी 0, यस, इट मे बी नॉन 0 बट एंगल 0 होगा तो चलेगा, फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, तो डी आल्सो करेक्ट। ये होता है थीटा मैग्नेटिक फील्ड एंगल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना चाहिए अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 लगना है। 2, इफ चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी 0, अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी ही चाहिए तभी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी 0, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी 0, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी, चार्ज पार्टिकल केप्ट एट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी 0, तो must not be 0 means okay,
सी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो, ओके, चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों लग रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, हाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो, नहीं इट मस्ट बी ज़ीरो, तो ये इनकरेक्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो मे नॉट बी ज़ीरो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो, एक मिनट इसका जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, तो चेक करते हैं, पहला आंसर करेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फोर्स लगना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इफ़ वी वांट टू हैव द मैग्नेटिक फोर्स आल्सो, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, तो दिस इज आल्सो करेक्ट है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक भी इंक्लूड हो गया ना इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, बी इज़ आल्सो करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो हो गई है ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो दिस इज इनकरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो है ना, तो दिस इज इनकरेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स लगना है, तो दिस शुड आल्सो बी नॉट ज़ीरो, मस्ट नॉट बी ज़ीरो, अगर ज़ीरो हो गए तो मैग्नेटिक, तो दिस इज आल्सो करेक्ट बी, मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो है ना, मे बी ज़ीरो, नो, ज़ीरो हो गई तो हाँ, तो बी कर लो इसको, मेक इट बी, ठीक है, ऑलराइट, ए एंड बी, फिर से क्रॉस चेक करें, चलो एक बार और देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, मतलब ई शुड बी देयर, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, अच्छा रेस्ट है ना, अच्छा रेस्ट पे दिया है, ओके इट इज़ एट रेस्ट, अगेन करेक्शन विल बी देयर, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो होना ही है, ठीक है, तो ए तो करेक्ट है, एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, जस्ट वंस मोर ट्राई करते हैं, चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो फील्ड तो होनी है, ए इज ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो है, रेस्ट पर है, ओके, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते रहे, चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जब लगेगा तो इट विल स्टार्ट मूविंग है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, हाँ अगर मैग्नेटिक फोर्स लगना है तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में बी ज़ीरो, नहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लगने से ये तो ज़ीरो नहीं है, द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी ज़ीरो है ना, मे बी ज़ीरो और मे नॉट बी ज़ीरो,
तो मे भी ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लगना है तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी देयर, एंड जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट से जब मूव करेगा, सपोज ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, ए एंड बी करेक्ट। इफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन द ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट्स, ठीक है, तो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो डिफ्लेक्ट। देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड, ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशिएंट टू डिफ्लेक्ट। बोथ फील्ड्स कैनॉट बी ज़ीरो। है ना, दोनों फील्ड जीरो होंगे तब डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो कैनॉट बी ज़ीरो, डिफ्लेक्ट होना है ना। बोथ फील्ड्स कैनॉट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो बोथ फील्ड्स कैनॉट बी ज़ीरो सही है, एंड बोथ फील्ड कैन बी नॉन ज़ीरो। हाँ, दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, कैन बी, है ना, कैन बी नॉन ज़ीरो, है ना। तो अगेन विल सी दिस, अगेन विल क्रॉस चेक इट। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट्स, देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी जीरो, दोनों जीरो होंगी तो डिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो ये सही है। एंड डिफ्लेक्ट होना है ना उसको, इट हैज़ टू डिफ्लेक्ट। ठीक है, देन बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन ज़ीरो, बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन ज़ीरो। हाँ, दोनों होनी चाहिए, बोथ फील्ड्स कैन नॉट बी ज़ीरो, है ना, ये तो सही है। बोथ फील्ड्स कैन बी नॉन ज़ीरो, ई भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए, डिफ्लेक्ट होगा, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन द वेलोसिटी, विच आर द फॉलोइंग इज और पॉसिबल। चार्ज पार्टिकल जो है मूव्स इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन द वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ए करेक्ट है, दोनों ज़ीरो हैं तो इट विल वेलोसिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, बी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बी नॉन ज़ीरो है ना, तो थीटा ज़ीरो रख के वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है तो फिर फोर्स लगाएगा चार्ज के ऊपर, तो सी इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दोनों ज़ीरो हैं, दोनों ज़ीरो हैं, दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तब वेलोसिटी मे नॉट चेंज। बिकॉज ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखो, वेलोसिटी इधर रखो, और इसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दो तो वो अनडिविडेड चली जाती। क्या कंडीशन होती है, v इज इक्वल टू ई बाई बी, इस वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं इसको। तो डी इज करेक्ट, ए बी डी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव्स along the circle under the action of possible constant electric and magnetic fields, which of the following are possible? Charge particle moves along the circle under the action of possible constant electric field, magnetic field, which of these are possible? सर्कल में चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। तो इसमें देखो दोनों ज़ीरो हैं तो सर्कुलर मोशन होगा नहीं। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बी जो है नॉन ज़ीरो है, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पे प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 पे प्रोजेक्ट किया तो ऐसे घूमेगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पैराबोलिक पाथ होता है उसका, पैराबोला बनाता है, ऐसा जाएगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, या और कोई पाथ हो सकता है, सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है
क्योंकि फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, विल सी फर्दर क्वेश्चंस। ये देखते हैं, चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन द रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ पॉसिबल दैट, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी फील्ड, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो सीधा चलता चला जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स उसको डिविएट नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल है। और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल में परपेंडिकुलर है ऐसे, तो वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस अनडिविएटेड जा सकता है ना। बाकी दोनों केसेस में अनडिफ्लेक्टेड नहीं जा पाएगा। वी पैरेलल टू वी तो इधर है बी की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट पैरेलल, तो वो टर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दोनों की डायरेक्शन, वेलोसिटी कहीं और है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसको टर्न कराएगी, तो ए एंड बी इज़ पॉसिबल। इफ चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन द रीजन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अनएक्सेलरेटेड जा रहा है, ठीक है, तो ई मस्ट बी मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ई मस्ट बी परपेंडिकुलर। हाँ, ये वाला केस देखो, अनएक्सेलरेटेड चला जाएगा। वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, है ना, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, ओके, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई। हाँ, यही केस देखो, परपेंडिकुलर टू ई है, मैग्नेटिक फील्ड का ये ऐसे तीनों परपेंडिकुलर है, ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी एंड वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, एंड दोनों फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी कंडीशन है, अदरवाइज नहीं होगा, बट बाकी नहीं होगी। वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, है ना, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई तभी भी वो चला जाएगा, ठीक है। ई मस्ट बी इक्वल टू, ई मस्ट बी इक्वल टू, बट डायरेक्शन भी ये तो है, बट डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, एंड वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। अगर ई परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ये भी फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा, है ना। और इसमें 7th में इफ चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, ये सही है, और वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, तो ये वाला फिर से चेक करेंगे, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, तो यहाँ से तो डिविएट हो जाएगा, इट विल टर्न, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर, ई मस्ट बी चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन द रीजन, तो ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, ठीक है, ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेक केयर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड विल टेक केयर ऑफ, है ना। वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, तो ये वाले में देखेंगे, तो वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, ये वाले में ये ऐसे है, समझ मैंने बी इधर लिया, और तो इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ लगा दे तो इट विल टेक केयर ऑफ, तो दे भी सही है, सी भी, है ना। और थर्ड वाला सही नहीं है, बिकॉज थर्ड वाले में नहीं, लास्ट वाला ई मस्ट बी इक्वल टू, तो ये इक्वल टू कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, इक्वल टू ये होना भी चाहिए। ये फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू ई बाई बी, ठीक है, तो देयर फोर ई इज इक्वल टू वी बी, तो ये सही है, बट इसके अलावा भी जो है ना, इसके अलावा भी, जस्ट मिनट, यहाँ से हमें ये कंडीशन तो मिल रही है ये वाले, ठीक है, बट डायरेक्शन भी तो मैनेज करना है परपेंडिकुलर, तो सी इज डी इज़ रॉन्ग, ठीक है, सी इज़ आल्सो करेक्ट, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, और ई को भी हम बाद में मैनेज कर सकते हैं,
ये कंडीशन तो है जैसे इसमें किया था, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर डी, परपेंडिकुलर रख के मैग्नेटिक फील्ड को भी इधर रखना पड़ेगा तभी, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, 8 देखेंगे, 2 आयंस हैव द इक्वल मासेस बट one is singly ionized and other is doubly ionized. They are projected from the same place in the uniform magnetic field with the same velocity perpendicular to the field. ठीक है, तो both ions will go along the circle of equal radius. No, एक singly है एक doubly है, तो wrong है. The circle described by the singly ionized charge will be have the double radius है ना, तो of the other चार्ज पे डिपेंड करता है, तो बी इज़ करेक्ट. द 2 सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर. टच करेंगे, देखो यहाँ से हमने शुरू किया ना, एक ऐसे आएगा, एक बड़ा सर्कल आएगा, एक जगह से प्रोजेक्ट करेंगे, दे विल टच ईच अदर. ठीक है. 9, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यू वांट टू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द शॉर्ट टाइम सो दैट इलेक्ट्रॉन मे रिवर्स इट्स डायरेक्शन and move parallel to the negative x-axis, which can be done by applying the magnetic field along z-axis. Suppose ये इधर जा रहा है, y इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऐसे, है ना, z-axis की तरफ, तभी वो ऐसे टर्न लेके या ऐसे टर्न लेके ऐसे आएगा, रिवर्स कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली पॉसिबल केस. ठीक है. 10 देखेंगे, E and B denote the electric field and magnetic field in the frame S and E dash B dash in other frame S dash moving with respect to S at the velocity V. 2 of the following equations are wrong. Which of the 2 following equations are wrong? and इनको डायमेंशनली चेक कर सकते हैं. देखो वेलोसिटी इक्वल टू E बाई बी होता है चार्ज पार्टिकल का, तो B जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को V से इसी से, देखो B यहाँ ले आओ, V इधर ले आओ, तो B इज़ E बाई V एंड E क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू फील्ड. ठीक है, तो डायमेंशन चेक करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे देखो एक सी द स्पीड ऑफ लाइट, तो एक स्पीड का डायमेंशन कैंसिल हो गया, ई बाई सी बचा, तो ई बाई सी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होती है. ये सही है. फिर यहाँ पे देखो ई बाई वी बचेगा या ई बाई सी बचेगा, इट हैज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V इंटू बी होता है. यहाँ पे देखो एक तो वेलोसिटी चला गया, तो एक वेलोसिटी नीचे बचा है, B बाई सी बचा है, होना क्या चाहिए, C इंटू बी होना चाहिए, तभी ये E बन जाएगा. तो ये इनकरेक्ट है डायमेंशनली. इसमें देखो डायमेंशन B का है और B के डायमेंशन के लिए B के डायमेंशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को V से डिवाइड करना पड़ता है. इलेक्ट्रिक फील्ड को V से डिवाइड, इसमें लेकिन मल्टीप्लाइड है, तो ये भी रॉन्ग है. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए हमें बी को वी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या सी से मल्टीप्लाई, तो ये सही है डायमेंशनली. तो डी इज़ आल्सो करेक्ट. तो रॉन्ग कौन कौन से हैं, रॉन्ग लिखने थे बी एंड सी आर रॉन्ग, तो ये लिखने थे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. डायमेंशनली इसको चेक कर सकते हैं. ओके, विल कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चंस इन